Hi everyone, how are you all? Hope you all are doing good. I am Shaima. Today I will be explaining for you all types of utility. In my previous video, I have given lecture related to meaning of utility, total and marginal utility. I will not be discussing much related to meaning of utility because I have to focus on so many points related to types. So utility क्या होता है? It is nothing but any commodity where consumer want can be satisfied. So it is nothing but utility. I will take an example of tea and coffee. जैसे कि मान लो मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद है, मुझे टी बिल्कुल पसंद है, ये नहीं बोलूँगी कि मुझे टी थोड़ा सा पसंद है. सो टी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, तो टी से मुझे कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है? 0 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलती है. वही मुझे कॉफ़ी से 10 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलती है. सो जो भी कमोडिटी को जो कमोडिटी से कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिले, सो इट इज़ नथिंग बट यूटिलिटी. सो उसकी जब उसकी वांट सेटिस्फाई हो, so any commodity which has the power which can satisfy the consumer want, it is nothing but utility. So now I will be discussing related to form utility. Form utility क्या होता है? So form utility it is nothing but any commodity when it is converted into some material form, the utility of such commodity it will increase, it will be created. जैसे कि मान लो I take an example of wood. If it is just wood, it will not satisfy the wants of the consumer. Consumer को कोई useful नहीं है एक raw material से. When it is converted into some material form, जैसे कि अगर हम एक wood को जैसे कि process करके जैसे कि manufacture करके, if we give some shape and structure for such raw material, then utility of such commodity it will increase. Why? Because it's satisfying the wants of the consumer. यहाँ पे consumer की want satisfy होती है. जैसे कि एक wood को लेकर जैसे कि process करके उसे अगर doors, tables, chairs या windows manufacture हो, then utility of such commodity it will increase because it will satisfy the wants of the consumer. तो इसकी utility क्या होती है? बढ़ने लगती है. एक raw material हो तो उसकी जब तक उसकी process नहीं होता, उसका manufacturing करके various commodities नहीं produce होते, तब तक उसकी utility क्या होती है? कम होती है. जब उसकी utility अगर हम manufacture करके various commodities manufacture हो जहाँ पे consumer की want satisfy हो, then utility उसकी क्या होती है? बढ़ने लगती है. You can give many example as like tea leaves. जैसे कि tea leaves कहाँ it is just a raw material, it will not be useful for the consumer. So वही अगर it will not be much useful for the consumer. वही अगर हम एक raw material को लेकर जैसे कि various tea powders produce manufacturers हो जैसे कि produce हो, then definitely it is satisfying the wants of the consumer. इसको process करके जैसे कि various tea powders बनाए जाए, then definitely it is satisfying the wants of the consumer. So it is nothing but like form utility. So फिर से मैं और एक एग्जांपल लूँगी. जैसे कि लेदर कहाँ से आता है? जैसे कि स्किन ऑफ शीप. सो अगर लेदर को जैसे कि वेरियस कमोडिटीज़ मैन्युफैक्चर होते हैं, जैसे कि लेदर जैकेट्स, लेदर बैग्स, लेदर जैसे कि लेदर बेल्ट्स. So various commodity it will be manufactured where it is satisfying the wants of the consumer. इन सिंपल वे में अगर मैं बोलूँ, कोई भी अगर रॉ मटेरियल को अगर हम मटेरियल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो इसकी यूटिलिटी क्या होती है? बढ़ने लगती है, यूटिलिटी क्रिएट होती है. सो इट इज़ नथिंग बट फॉर्म यूटिलिटी. सो प्लेस यूटिलिटी क्या होता है? सो प्लेस यूटिलिटी इट इज़ नथिंग बट वे ट्रांसफर ऑफ लाइक एनी कमोडिटी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. जहाँ पे हम कमोडिटी को क्या करते हैं? शिफ्ट करते हैं फ्रॉम द प्लेस ऑफ अबंडेंस टू द प्लेस ऑफ स्कैरसिटी. सो यहाँ पे जहाँ पे मान लो आई विल टेक एन एग्जांपल लाइक आई हैव अ गुड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री विच इज सिचुएटेड इन हॉट रीजन. हॉट रीजन पे जैसे कि भाई वुलन के क्लोथ्स यहाँ पे मैन्युफैक्चर होते हैं. सो इफ़ इट इज़ सिचुएटेड इन हॉट रीजन वेयर डिमांड इट विल बी लेस, यहाँ पे परचेसिंग पावर कम रहती है. सो अगर मैं जैसे कि कोल्ड रीजन पे सप्लाई करूँ, वहाँ पे परचेसिंग पावर भी ज़्यादा रहेगी और जैसे कि डिमांड उसकी ज़्यादा रहती है. जैसे कि आई गिव एन एग्जांपल ऑफ लाइक शिमला मनाली. इफ माई लाइक वुलन क्लोथ्स इफ इट इज सप्लाइड इन कोल्ड रीजन जहाँ पे उसकी डिमांड ज़्यादा हो, देन यूटिलिटी ऑफ सच कमोडिटी इट विल इंक्रीज. सो यहाँ पे उसकी डिमांड कम रहती है हॉट रीजन पे, यहाँ पे उसको उसकी नेसेसिटी उतनी नहीं होती. जहाँ पे उसकी नेसेसिटी ज़्यादा हो, अगर मैं वही जगह पे से शिफ्ट करूँ, then demand for that such commodity it will increase. You can give many example as like spices कहाँ पे produce होते हैं? जैसे कि इंडिया में. What they are doing? They are exporting in other countries. Why? Because to increase the utility of such commodity. So यहाँ पे क्या होती है? वो उनकी यूटिलिटी बढ़ाने के लिए वो क्या कर रहे हैं? जैसे कि दूसरे कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहे हैं. एंड इवन यू कैन गिव एन एग्जांपल ऑफ लाइक ऑयल. वेयर ऑयल इज प्रोड्यूस?
oil is produced like in Middle East countries. What they are doing? They are exporting in other countries to increase the utility. So it is nothing but place utility. Time utility क्या होता है? Time utility, it is nothing but where any commodity it will be stored and it will be released when it is desired by the consumer. So यहाँ पे जब उसकी demand हो, I can give a best example of like crackers. क्रैकर्स की डिमांड कब ज़्यादा रहती है? जैसे कि ऑन द ओकेशन ऑफ दिवाली, जब उसकी डिमांड ज़्यादा हो तब वो कमोडिटी को रिलीज़ करते हैं. सो इट विल बी केप्ट, इट विल बी स्टोर इन लाइक, यहाँ पे वेयर हाउस पर क्या कहते हैं, वो स्टोर करके रहते हैं. सो इट विल बी रिलीज व्हेन इट इज़ डिमांड बाय द कंज्यूमर, व्हेन इट इज़ डिमांडेड बाय द कंज्यूमर. सो एज आई सेड, लाइक क्रैकर्स की डिमांड कम रहती है दिवाली पे, देन उसकी डिमांड क्या होती है, बढ़ने लगती है. नेक्स्ट इट इज़ नथिंग बट सर्विस यूटिलिटी. सर्विस यूटिलिटी क्या होती है? इट इज़ नथिंग बट वेर यूटिलिटी इट विल बी क्रिएटेड व्हेन इट इज़ व्हाट लाइक वेन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन टेक प्लेस एट सेम टाइम. जैसे कि मेरे लेक्चर से आपको कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन तो मिल रहा है. इन यूटिलिटी इट इज़ व्हाट इट विल बी क्रिएटेड. यू कैन गिव एन बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ लाइक लॉयर्स, डॉक्टर्स, लाइक टीचर्स, लेक्चरर्स. सो यहाँ पे क्या होती है, दे विल रेंडर देयर सर्विस. सो जहाँ पे आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, आपका पर्पस फुलफिल होता है. सो इट इज़ नथिंग बट सर्विस यूटिलिटी. इट इज़ नथिंग बट आपको ये याद रखना है, जैसे कि प्रोफेशनल दे रेंडर दे सर्विस एंड दे विल गिव सेटिस्फैक्शन एंड लाइक प्लेजर फॉर ऑपोजिट पर्सन. सो यहाँ पे वो होता है सर्विस यूटिलिटी. नेक्स्ट इट इज़ नथिंग बट नॉलेज यूटिलिटी. नॉलेज यूटिलिटी क्या होता है? इट इज़ नथिंग बट where a utility it will be created when any knowledge it will be when it is acquired. So कोई भी commodity की अगर हम knowledge acquire करें, so वहाँ पे utility उसकी create होती है. So I'll give an best example, like few days before I have taken a roti maker. So I was not knowing how to use that. It was kept idle, वो बेकार ही पड़ा था. जबकि मैंने थोड़े दिन के बाद मैंने क्या किया, जैसे कि मैंने यूट्यूब से, मैनुअल से या थोड़े जैसे कि डेमो में देखा कि उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं. देन मुझे जब उसकी नॉलेज एक्वायर हुई, देन आई वाज नोइंग हाउ टू यूज़ दैट कमोडिटी. तब उसकी यूटिलिटी क्या हुई, बढ़ने लगी. पहले जब मुझे यूज़ ना करती थी तब उसकी यूटिलिटी कम थी. नाउ आई फ्रीक्वेंटली आई एम यूजिंग सच कमोडिटी, then utility of such commodity it has been what, it has increased. You can give many example as like computer, as like mobile phone, gadgets. क्या करते हैं हम, हमें उसकी नॉलेज ना हो तो हम उसको कम यूज़ करते हैं. जब हमें उसकी नॉलेज मिलने लगे तब हम रेगुलरली हम क्या करते हैं, उसको यूज़ करने लगते हैं. सो इट इज़ नथिंग बट नॉलेज यूटिलिटी. नेक्स्ट इट इज़ नथिंग बट पोजेशन यूटिलिटी. पोजेशन यूटिलिटी क्या होती है? इट इज़ नथिंग बट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. जैसे कि मान लो फ्रॉम सेलर टू बायर. सो सेलर मान लो वेजिटेबल वेंडर, सो ही इज़ हैविंग लाइक ही विल बी एन ओनर. और तब तक ओनर रहेगा जब उसके वेजिटेबल्स अगर कंज्यूमर को सेल करने के बाद कंज्यूमर उसके ओनर रहेंगे, ना कि वेंडर. सो इवन यू कैन गिव एन एग्जाम्पल ऑफ लाइक आई वॉन्ट टू परचेज अ कार. सो कार का ओनर कौन रहेगा? जैसे कि डीलर. अगर वो डीलर परचेज मुझे सब मैं परचेज करने के बाद, सो उसकी ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप किसे हो जाएगी? ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप इट विल बी लाइक इट विल बी फॉर मी. सो वो कार की ओनर कौन होंगे? जैसे कि आई विल बी द ओनर ऑफ दैट कार. सो हियर द ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. तब तक वो डीलर की थी जब तक मैं परचेज करने से पहले. परचेज करने के बाद वो चीज़ मेरी हो गई. आई विल बिकम द ओनर ऑफ सच कमोडिटी. So it is nothing but possession utility. Okay, thank you so much. If you like my video, please give a like and subscribe. Thank you.